بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ مٹی میں بہت بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بھی بہت تھا۔ لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا تھا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا کہ جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص، جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جس کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سردارو، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہم تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔
मगर ताकत के गुरूर में पड़े हुए सरदारों और मजहबी लीडरों ने लोगों को ये कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी इज्जत न देता, उनकी ज़मीनों को इतना सरसब्ज न बनाता, उनके महल और पहाड़ों में तराशे हुए मकान इतने उम्दा न होते। बुतखानों के मालिक यानी काहिन कहते, ऐ लोगों, खुद सोचो, जो हाथ गुनाहगार हों उन हाथों में अल्लाह ये हुनर क्यों पैदा करेगा जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मुअज़्ज़िज़ बन जाएं। कुछ झूठे दानिश्वर दूर की कौड़ी लाए और कहने लगे, दरअसल इसका अलहदा और तन्हा रहने से ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसलिए ये अपने बाप दादा को गुमराह करार देकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ ज़्यादा हमदर्दी जताते तो कहते, बेचारे सालेह पर किसी बदरूह का साया पड़ गया है। आज तो ये कहने से भी बाज ना आए कि सालेह जादूगर हो गया है। कुछ सरदार कहते, हमें यकीन है कि सालेह ने ये सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सरदार बन जाए। ये बहुत चालाक शख्स है। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों और बुतकदों के काहिनों की बातों की कोई परवाह न की और अपनी तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और आपके रसूल होने का इकरार करके शिर्क और बुरी बातों से बाज आ गए। इनमें अक्सर ऐसे थे जो गरीब और आम लोग थे। कौम के सरदारों ने इन ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ करार दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया। कई वर्षों की तबलीग के बाद समूदी कौम आपसे तंग आ गई। वो आपको अपने ताकतवर कबीले का मुअज़्ज़िज़ शख्स होने की वजह से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। इन दिनों कबीले के किसी फर्द के कत्ल हो जाने पर जंग का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता था। चुनाचे कौम के सरदारों ने बुतकदों के काहिनों से मिलकर एक वफद बनाया। ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, ऐ सालेह, हम तुम्हारी बातों से सख्त तंग आ गए हैं। तुम्हारी अजाब की धमकियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हमारी खुशहाल और संगीन जिंदगी को तुमने कबाब में हड्डी बनकर तबाह कर दिया है। इस मौके पर हम तुमसे साफ साफ बातें करना चाहते हैं, वो ये कि तुम कोई मौजज़ा दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। तब एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारे मुतालबे पर भेजी गई है, इसलिए एक दिन ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश की या इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। कौम के सरदार बहुत डरे। वो कुछ अरसे तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक इस पर पाबंदी से अमल करते रहे, लेकिन जल्द ही उनका सब्र ख़त्म हो गया। उन्होंने अपना यूँ पाबंद होना बिल्कुल भी पसंद ना किया। वो ऊँटनी को अपने चरागाहों में चरता देखते तो सख्त गुस्सा खाते। आखिर दो मालदार और अमीर औरतों ने दो आदमियों को तैयार किया, उन्हें अपनी दौलत का लालच दिया और उनसे कहा कि वो अल्लाह की इस निशानी ऊँटनी को हलाक कर दें। ये दो आदमी अच्छी तरह जानते थे कि वो एक बहुत ही खौफनाक काम करने का इरादा कर रहे हैं। वो पहले तो खौफजदा हुए, मगर रकम के लालच और दूसरे लोगों के कहने पर तैयार हो गए। इन आदमियों ने मंसूबा बनाया कि वो ऊँटनी को उस दिन हलाक करेंगे जब
उसके पानी पीने का दिन होगा। चुनाचे अगले ही दिन वो कुएं के पास जाकर छुप गए। उनका प्रोग्राम ये था कि जैसे ही ऊँटनी कुएं के करीब आएगी वो उस पर हमला करके उसे मार देंगे। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। ऊँटनी लंबे लंबे डग भरती कुएं के करीब आई। दोनों जालिम चुपके से कुएं की मुंह से निकले और ऊँटनी पर हमलावर हो गए। एक ने तलवार का वार करके उसकी पूंछें काट दी और दूसरे ने आगे बढ़कर गर्दन पर नेज़ा मारा। बेचारी ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। बेकसूर ऊँटनी को जमीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग भी पहुंच गए। ये लोग छुप कर ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ऊँटनी पर हमला करने वालों को कुछ नहीं हुआ तो उनका भी हौसला बढ़ा। वो भी अपना गुस्सा उतारने पहुंच गए। अब वो सब मिलकर ऊँटनी को मार रहे थे। ऊँटनी को मारने वालों को रिश्वत देने वाली औरतें भी ये मंजर देख रही थी। इन सब ने खुशी के नारे लगाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कह रहे थे, ऐ सालेह, हमने अल्लाह की निशानी ऊँटनी को कत्ल कर दिया है और हमें कुछ नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अब कौम समूद की मोहलत ख़त्म हो गई है। इन लोगों पर 24 घंटों के दौरान ऐसा अजाब आएगा कि इनकी बस्तियां इबरत का निशान बन जाएंगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात जब ऊँटनी के कातिलों तक पहुँची तो वो बहुत खौफज़दा हुए, लेकिन माफ़ी मांगने की बजाय उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। 9 कबीले इकट्ठे हो गए और हर कबीले से एक एक जंगजू मुंतखब किया गया और फैसला हुआ कि रात को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करके उनका किस्सा पाक कर दिया जाए। उन्होंने एक दूसरे से वादा लिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए सब कबीले एक दूसरे का साथ देंगे। यूँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कबीला बाकी कबीलों से बदला लेने की जुर्रत नहीं कर सकेगा और डर कर खामोश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक इन काफिरों को अपने मंसूबे पर अमल करने की मोहलत ही ना दी। अल्लाह ताला का कानून है कि उसके रसूलों को उनकी कौम यूँ शहीद नहीं कर सकती। अगर कौम उसकी कोशिश भी करती है तो उस पर अजाब आ जाता है। चुनाचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया और वो अपने मानने वालों को साथ लेकर रातों रात वहाँ से निकल गए। इसी रात वादी में एक खौफनाक तूफ़ान आया। बगोले की शक्ल के इस तूफ़ान की गरज इंतहाई दहशतनाक थी। उसने अहले समूद को तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया। मजबूत महलों और किला नुमा मकानों में रहने वाले ये बदकिस्मत लोग अब अल्लाह की पकड़ में थे। सुबह हुई तो इनकी बस्ती इबरत का नमूना बन चुकी थी। एक भी काफिर जिंदा नहीं बचा था। मकानात और महल्लात का तो जिक्र ही क्या, पहाड़ भी यूँ नज़र आ रहे थे जैसे हवा उनके आर पार होकर गुजरी हो। और ये पहाड़ और महल पत्थरों के नहीं बल्कि कपड़े के बने हुए थे और हवा ने उन्हें आग की तरह जला कर तबाह कर दिया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाके रमला के करीब आकर आबाद हो गए और बाकी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। ये थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊँटनी का एक वाक़या, एक किस्सा, एक कहानी जो एक इबरतनाक कहानी है उन लोगों के लिए जो काफिर हो चुके थे, जो अल्लाह ताला की ज़ात को भूल चुके थे, जो अल्लाह पाक के रास्ते पर ना चलने की कसम खा चुके थे। अल्लाह पाक
ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔